Hello and welcome to this News Mobile special election results explainer. I am Saurabh Shukla. What a day it has been, a roller coaster ride, and the voters have decided. This is how the day unfolded. What started as a big bang with the exit polls may just end in a whimper for the BJP-led NDA alliance. The leads that have come in today have shown us that the BJP-led India alliance is closer or just shy of 300 seats, and the India alliance led by the Congress is inching closer to 230 seats, much more than what anybody expected. On the Election Commission's website, we have got a list of winners, and the heavyweights who have won include Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah of the BJP. Kiren Rijiju has also won, and Kangana Ranaut, who has contested for the first time on a BJP ticket from Mandi, also won. We also have Anurag Thakur amongst the winners from the BJP. From the Congress, Rahul Gandhi won on his seat. So did Shashi Tharoor and Charanjit Singh Channi. So these were the big winners for both these two parties that have been declared so far. There, of course, will be a few losers, some disappointments coming in when it comes to candidates. And when it comes to states, the big disappointment turned out to be Uttar Pradesh and Maharashtra, where the BJP perhaps miscalculated the number of seats they will get. For more analysis on that, let's go across to our reporters. Thank you, Anisha. So now let's listen into what PM Modi and Rahul Gandhi said after the results were announced. और इस पावन दिन एनडीए की लगातार तीसरी बार सरकार बननी तय है। हम सभी जनता जनार्दन के बहुत आभारी हैं। देशवासियों ने भाजपा पर, एनडीए पर पूर्ण विश्वास जताया है। बीजेपी एक राजनीतिक दल, हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस, हिंदुस्तान का जो पूरा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सीबीआई, ईडी, ये सब आधी जुडिशरी, इन सब के खिलाफ हम लड़े थे, क्योंकि इन सब संस्थाओं को, इन सब इंस्टीट्यूशंस को नरेंद्र मोदी जी ने और अमित शाह जी ने कैप्चर करा, धमकाया, डराया। प्रेस की तो मैं बात करता रहता हूं, आपको मतलब काफी बार कहा है कि आपका भी रोल रहना चाहिए, और उस रोल को काफी लोगों ने किया, काफी लोगों ने खुल के किया, काफी लोगों ने छुप के किया, और आपके इमोशंस कहां थे हमें मालूम है। लड़ाई संविधान को बचाने की थी, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की थी। और मैं आपको सच बताऊं तो मेरे माइंड में था पहले से, जब इन्होंने हमारा बैंक अकाउंट कैंसिल किया, जब चीफ मिनिस्टर्स को जेल में डाला, पार्टियां तोड़ी, मेरे माइंड में था कि हिंदुस्तान की जनता अपने संविधान के लिए एक साथ खड़ी होकर लड़ जाएगी, और यह सच साबित हुआ। So if we talk about Delhi, BJP sweep all the 7 seats in Delhi. Manoj Tiwari, the sitting MP from East Delhi, is defeated Kanhaiya Kumar. Meanwhile, in Haryana, BJP and Congress both conceded 5 seats, so it's a win-win for both the parties over there. However, in the beginning, there was a certain upset in Gurugram. However, Ravinderjeet Singh regained the lead, and now he's currently leading from the constituency of Gurugram. Meanwhile, former Haryana Chief Minister Manohar Lal Khattar, he's leading from Karnal seat. In Maharashtra, there is a big upset for the NDA. As of now, the NDA is leading only on 19 seats out of 48, whereas the India Alliance is leading on 28 seats.
Major winners and losers include Piyush Goyal from the BJP from Mumbai North constituency, Supriya Sule of NCP. She's also leading from her city, constituency where she's currently the member of parliament from. Nitin Gadkari again, from Nagpur, it's a stronghold for him, from where he's again leading in the 2024 Lok Sabha elections. In Andhra Pradesh, NDA is a good day for the NDA. The NDA is leading on 21 seats, out of which 16 seats are held by the TDP, led by Chandrababu Naidu. Meanwhile, BJP managed to score 3 seats in the state of Andhra Pradesh, and others have 4 seats. So it will be a key state out of in 25 constituency state of Andhra Pradesh. BJP managed to bag 3 seats, and in alliance with the TDP, the NDA got 21 seats. Thank you. एट द एंड ऑफ द डे अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो लोकसभा चुनाव के इस रिजल्ट में मध्य प्रदेश में बीजेपी ने भारी बहुमत से 29 की 29 सीटों के अपने नाम कर लिया है। मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश में टोटल 29 सीटें हैं और इस बार बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए ये 29 सीटें अपने नाम कर ली हैं। हालांकि चुनाव के जो रिजल्ट हैं वो पूर्ण तरीके से अभी नहीं आए हैं, वोटिंग जारी है, लेकिन कई सीटों पर भारी बहुमत से बीजेपी ने जीत हासिल कर ली है। इस चुनाव में काफ़ी बड़े नाम भी शामिल थे, जैसे कि शिवराज सिंह चौहान जिन्होंने विदिशा से भारी बहुमत से जीत दर्ज की है, वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया जिन्होंने गुना से उनकी सीट से भारी बहुमत से जीत हासिल की है। वहीं एक सीट जो बीजेपी के पास नहीं थी छिंदवाड़ा की, वो भी इस बार बीजेपी के पास आ गई है। नकुल नाथ अपनी सीट छिंदवाड़ा से हार चुके हैं। साथ ही दिग्विजय सिंह भी मध्य प्रदेश में हार के साथ वापसी कर रहे हैं कांग्रेस की ओर। वहीं बात करें अगर राजस्थान की, राजस्थान में टोटल 25 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के पास इस वक्त 14 सीटें हैं। वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस के पास कुल 8 सीटें जाते हुए नज़र आ रही हैं। हालांकि अभी मतगणना जारी है, तो पूर्णतः जो रिजल्ट है उसे आने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन जो रुझान है उस रुझान को अगर हम मद्देनज़र रखें तो इस वक्त राजस्थान में बीजेपी जीत तो रही है, लेकिन जो उम्मीद बीजेपी ने राजस्थान में की थी नई सरकार, नया सीएम होने के बावजूद, वो शायद विफल होती नज़र आ रही है। भजन लाल शर्मा से जितनी उम्मीदें थी, शायद राजस्थान में वो उम्मीद बीजेपी के लिए भजन लाल कायम नहीं रख पाए हैं। हालांकि देखते हैं कि आखिरी रुझान, आखिरी जब ये रिजल्ट आ जाएगा तब स्थिति पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। तब तक के लिए बने रहिए। तो 4 जून का दिन आज समाप्त होने को आया है, लेकिन ये राजनीतिक पार्टियों के लिए काफी बड़ा दिन साबित होने वाला है। आने वाले दिनों में देश की सरकार किसकी होने वाली है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होने वाला है, क्योंकि किसी भी पार्टी को बहुमत मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। बात अगर उत्तर प्रदेश की करी जाए तो यहाँ पे भी जो लीडिंग पार्टी थी, जो कि सत्ताधारी पार्टी थी भाजपा, उसको काफी बड़ी मात्रा में नुकसान हुआ है। बात अगर उत्तर प्रदेश के नतीजों की जाए तो फिलहाल अभी के जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक 43 सीटों पे इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है, वहीं भाजपा 36 सीटों पे आगे चल रही है, और एक पर यानी कि नगीना वाली सीट से चंद्रशेखर आजाद जो कि भीम आर्मी से हैं वो आगे चल रहे हैं। वहीं अगर की कैंडिडेट्स की बात कर ली जाए उत्तर प्रदेश की, तो स्मृति ईरानी जो कि भाजपा का बड़ा चेहरा थी, वो अमेठी से हार चुकी हैं। वाराणसी से पीएम मोदी जीत चुके हैं। राजनाथ सिंह लखनऊ से आगे चल रहे हैं। रायबरेली से काफी बड़े मतों से राहुल गांधी आगे चल रहे हैं और जीत की ओर बढ़ रहे हैं। और बात समाजवादी पार्टी के मुखिया की जाए, अखिलेश यादव की जाए, तो वो भी अपनी कन्नौज सीट से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं बात अगर उत्तर प्रदेश से सटे हुए राज्य बिहार की जाए तो यहाँ पर कुल 40 लोकसभा सीटें हैं और इन 40 में से 30 एनडीए गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, वहीं 9 इंडिया गठबंधन के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही हैं और एक निर्दलीय उम्मीदवार यहाँ से आगे बढ़त बनाए हुए हैं। यहाँ पर बिहार में बेगूसराय से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जीत हासिल कर ली है। वहीं पाटलिपुत्र से लालू यादव की बेटी मीसा भारती वो आगे चल रही हैं। औरंगाबाद से अभय कुमार सिन्हा जो कि आरजेडी से आते हैं वो आगे चल रहे हैं। वहीं पुरनिया सीट भी हॉट सीट बनी हुई है, क्योंकि यहाँ से निर्दलीय उम्मीदवार पप्पू यादव वो आगे चल रहे हैं और अभी गया से जीतन राम मांझी ने भी जीत हासिल कर ली है। How will these results impact you and the world? Number 1, India will continue to provide a global leadership.
Obviously, there will be challenges with a strong opposition mounting challenges for the government and also taking it on from foreign policy to its economic policy. Certainly, welfare schemes will be hit because obviously opposition will not like the government to take the credit for all these schemes. Third, Parliament will always be stalled because now a strident opposition will make sure that the government does not have a free run on getting the crucial bills passed. But on the whole, there will be a bipartisan policy that will be implemented when it comes to foreign policy and internal security. But yes, it will be a rough ride for the new government in Delhi post these results in 2024. Thanks for watching this News Mobile special.